हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 28 ਮਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ PSCB ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ PSCB ਕਲਰਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਡੇ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਡੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 24 ਮਈ ਨੂੰ। 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਐਮਪਾਇਰ ਡੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਐਮਪਾਇਰ ਡੇ। ਕੁਈਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਡੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਟੂ ਐਂਡ ਓਬਸਟੈਰਿਕ ਫਿਸਟੂਲਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਟੂ ਐਂਡ ਓਬਸਟੈਰਿਕ ਫਿਸਟੂਲਾ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 23 ਮਈ ਨੂੰ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 23 ਮਈ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਐਂਡ ਫਿਸਟੂਲਾ ਨਾਓ। ਐਂਡ ਜੈਂਡਰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਐਂਡ ਫਿਸਟੂਲਾ ਨਾਓ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ਖੁਡੋਲ। ਮਣੀਪੁਰ ਖੁਡੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲਿਸਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਟੌਪ 10 ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਫॉर ਐਨ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਵਿਡ-19। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੁਆਰਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਟੌਪ 10 ਗਲੋਬਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਖੁਡੋਲ ਗਿਫਟ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਖੁਡੋਲ ਨੂੰ ਟੌਪ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ NGO ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੋ-ਆਲ NGO ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੂ ਰਿਫਾਰਮ ਦਾ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰੀਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ। ਰਾਜੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਣ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ। ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਸਾਂਝ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਡਿਊ ਆਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ 3 ਟਾਈਮ ਓਲੰਪਿਕ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਾਰਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ 1948, 1952 ਔਰ 1956। ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੰਡਨ, ਹੈਲਨਸਿੰਕੀ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੰਡਨ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਹੈਲਨਸਿੰਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਥਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਥਰਡ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥਰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਭਗਲ। ਮੋਹਿਤ ਭਗਲ ਪਾਸਡ ਅਵੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਐਕਟਰ। ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਮੋਹਿਤ ਭਗਲ? ਐਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬਿਲਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਗਾਂਡਾ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਯੂਗਾਂਡਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਨਰਲ ਯੋਵੇਰੀ ਕਾਗੂਤੋ ਮੋਸੇਵੀਨੀ। ਯੋਵੇਰੀ ਕਾਗੂਤਾ ਮੋਸੇਵੀਨੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਾਲਾ, ਕਰੰਸੀ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਾਲਾ, ਕਰੰਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਜੈਮੀ ਹੈਮਟਨ।
ਜੈਮੀ ਹੈਮਟਨ ਕਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? USA ਤੋਂ। ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਜੈਮੀ ਹੈਮਟਨ। ਜੈਮੀ ਹੈਮਟਨ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? USA ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਪਾਰਟਨਰਡ ਵਿਦ ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਆਫਰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵਹੀਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਟੂ ਬਾਇਰਸ। ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੋਲਾਮੰਡਲਮ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਆਫਰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵਹੀਕਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਟੂ ਬਾਇਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सैटअप किया माइग्रेंट कमीशन। माइग्रेंट कमीशन किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा माइग्रेंट कमीशन सैटअप किया गया जिस दे नाल एम्पलॉयमेंट और इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाई जा सके माइग्रेंट वर्कर्स नूं। माइग्रेंट वर्कर्स नूं इंप्लॉयमेंट और इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए माइग्रेंट कमीशन किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया गया? उत्तर प्रदेश द्वारा। नैक्सट है 7 सर्विसेज होस्टेड बाय द साइट ऑफ IMD इंडियन मैटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। फुल फॉर्म याद रखनी है इंडियन मैटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसकी 7 सर्विसेज नूं किस दे उत्ते लगाया गया? उमंग। उमंग एप्लीकेशन के उत्ते लियाया गया। ठीक है, उमंग की फुल फॉर्म याद रखनी है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। न्यू एज गवर्नेंस इस एप्लीकेशन नूं लॉन्च किया गया सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? 7 ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਐਂਸੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ NBA UNDP इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। इन्होंने द्वारा प्रोग्राम लॉन्च किया गया NBA UNDP इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। इस तो इलावा UNEP एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कैंपेन। UNEP एंडेंजर्ड स्पीसीज़ कैंपेन किन्होंने द्वारा लॉन्च किया गया? प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। नैक्सट है अज की स्टेट आप डिस्कस करांगे तमिलनाडु। 1 नवंबर 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई है। लार्जेस्ट सिटी भी चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर कौन ने? E.K. पलानास्वामी। E.K. पलानास्वामी। गवर्नर ने बनवारी लाल पुरोहित। E.K. पलानास्वामी चीफ मिनिस्टर ने, गवर्नर ने बनवारी लाल पुरोहित। 38 डिस्ट्रिक्ट्स ने। 38 डिस्ट्रिक्ट्स ने। लोकसभा की सीट्स 39, राज्यसभा की सीट्स 18 है और यूनिकैमरल लैजिस्लेचर इत्थे विधान सभा की सीट्स 238 ने। बॉर्डर स्टेट्स की गल करते हैं पुडुचेरी केरला करनाटका आंध्र प्रदेश। पुडुचेरी केरला करनाटका और आंध्र प्रदेश के नाल बॉर्डर शेयर करता है। मीनाक्षी टैंपल कामेक्षी टैंपल 2 इंपोर्टेंट टैंपल्स याद रखने ने मीनाक्षी और कामेक्षी। मीनाक्षी और कामेक्षी कित्थे ने? तमिलनाडु दे विच ने। पोंगल फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया जाता है तमिलनाडु दे विच। पोंगल फैसटीवल कित्थे ऑर्गेनाइज किया जाता है? तमिलनाडु दे विच। नेक्स्ट है नेशनल पार्क्स। गुंडे नेशनल पार्क, मधु मलाई नेशनल पार्क, अन्ना मलाई नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मुकुर्थी नेशनल पार्क, पलानी नेशनल पार्क। गुंडे, मधु मलाई, अन्ना मलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्थी और पालानी। गुंडे, मधु मलाई, अन्ना मलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्थी और पालानी। नेशनल पार्क्स ने याद रखने ने इंपॉर्टेंट 6 नेशनल पार्क। भारतनाट्यम डांस फेमस है। स्टेट एनीमल की गल करिए नीलगिरी टहर। नीलगिरी टहर। नीलगिरी टहर स्टेट एनीमल है। एमरल्ड डॉव। एमरल्ड डव। डव की गल करते हैं एमरल्ड डव स्टेट बर्ड है। लिली। लिली दी ग्लोरिसा लिली। ग्लोरियोसा लिली फ्लावर स्टेट फ्लावर है। और पाम ट्री। पाम ट्री स्टेट ट्री है। इस तो इलावा वलनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, विराली मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वलनाडु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
और विराली मलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कित्थे सिलेक्टेड है? तमिलनाडु दे विच। ठीक है जी, बेसिकली मलाई तो याद रखांगे, मलाई जिथे आएगा उत्थे तमिलनाडु लिखांगे। मधु मलाई, अन्ना मलाई, विराली मलाई। नैक्सट है अज की फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। विद विच स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड टू सप्लाई शाही लीची एंड जरदालू मैंगो टू द पीपल। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि शाही लीची और जरदालू मैंगो और शाही लीची नू डोर स्टैप कह सकते घर घर तक प्रोवाइड करवाने लिए, घर घर तक प्रोवाइड करवाने लिए किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने समझौता किया है? किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? बिहार। किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया? बिहार। ठीक है जी, बिहार द्वारा अनाउंस किया गया शाही लीची और जरदालू मैंगो। इस तो इलावा बिहार की गल करते हैं, जल जीवन कैंपेन लॉन्च किया सी बिहार ने। जल जीवन कैंपेन बिहार द्वारा ही लॉन्च किया गया सी। प्यार का पौधा कैंपेन भी लॉन्च किया गया सी बिहार द्वारा। आंध्र प्रदेश की कुछ स्कीम्स की अगर आप डिस्कस करिए, नेतनम नेस्टम, नाडू नेडू प्रोग्राम, लॉ नेस्टम प्रोग्राम, अम्मा बोधी स्कीम, ये सारी स्कीम्स कितने लॉन्च की गई सी? आंध्र प्रदेश द्वारा। ठीक है जी, रिसेंटली मत्स्य करा भरोसा स्कीम के अंडर 10,000 रुपये किसनू देने की गल की गई है? फिशरमैनस फैमिली नू। निर्माण पोर्टल आंध्र प्रदेश द्वारा ही लॉन्च किया गया सी। गुजरात की गल करते हैं, गुजरात के अहमदाबाद दे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति नू सैकेंड लार्जेस्ट जिहड़ी कि सैकेंड लार्जेस्ट सी उसनू लॉन्च किया गया सी। किस द्वारा? चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी द्वारा। गुजरात के गांधीनगर दे विच COP13 कॉन्फ्रेंस हैल्ड की गई सी। वहीली डिग्री योजना गुजरात दे विच ही लॉन्च की गई सी। महाराष्ट्र दे विच काला घोड़ा फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया गया सी। अच्छा, एक लोन वेवर स्कीम की गल करते हैं। लोन वेवर स्कीम महाराष्ट्र की एक लोन वेवर स्कीम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ दे विच रही सी, उसका नाम दसना है। रिसेंटली लॉन्च की गई सी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। करनाटका की गल करिए, करनाटका के बेंगलुरु के एक फैसटिवल हैल्ड किया गया सी करागा फैसटिवल कित्थे हैल्ड किया गया सी? करनाटका के बेंगलुरु के विच। ये याद रखना। नैक्सट है हू इज़ अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ वोडाफोन कंपनी की गल करते हैं। वोडाफोन के नवे चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? वोडाफोन के नवे चेयरमैन कौन अपॉइंट किए गए? जीन फ्रैंकोइस बॉक्समीर वोडाफोन के नवे चेयरमैन अपॉइंट किए गए। रिप्लेस करनगे जेराल्ड क्रिस्टरेली इन्हों रिप्लेस करके जीन फ्रैंकोइस बॉक्समीर नवे वोडाफोन के चेयरमैन अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, बेसिकली इन्हों की टर्म स्टार्ट होएगी आई थिंक सितंबर तो, ये याद रखना है। इस तो इलावा जहनाबी फूकान इन्हों का नाम रिसेंटली आप डिस्कस किया सी FLO फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी जहनाबी फूकान। फिक्की के हैड कौन ने? संगीता रेड्डी। फिक्की के हैड भी याद रखेंगे आप संगीता रेड्डी। दिलीप ओमन की गल करते हैं। दिलीप ओमन अपॉइंट किए गए सी प्रेजिडेंट। किस दे प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी? इंडियन स्टील एसोसीएशन जिन्नी स्टील कंपनीज ने उन्होंने जोड़ा ग्रुप है उसनू कहा जाता है इंडियन स्टील एसोसीएशन, और उसके हैड अपॉइंट किए गए सी, प्रेजिडेंट अपॉइंट किए गए सी दिलीप ओमन। राजेश गोयल नू रिसेंटली किसका हैड अपॉइंट किया गया सी? नैशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया सी। नैशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट है विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज इनोग्रेटेड द इंडियन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर इन न्यू दिल्ली। रिसेंटली एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने इनोग्रेट किया इंडिया का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर। कित्थे इनोग्रेट किया? न्यू दिल्ली दे विच। इसके बारे सब तो पहले हल्का डिस्कस करते हैं कि इसनू किस दे लिए ओपन किया गया है।
ਕਲੇਮਸ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਲੇਮਸ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਲੇਮਸ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ AK ਸਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ। AK ਸਿਕਰੀ ਫੋਰਮਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ AK ਸਿਕਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਸਪਿਊਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਫੋਰਮਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸਮਸੀ ਵਰਜਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦਾ, ਕੋਰਟਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ SA ਬੋਬਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 47th ਨੰਬਰ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਸ਼ਰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਬੋਬਦੇ, ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਰੰਜਨ ਗੰਗੋਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੇਹਾਨ ਮਧੂਸ਼ੰਕਾ ਸਸਪੈਂਡਡ ਫਰੋਮ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ? ਸ਼ੇਹਾਨ ਮਧੂਸ਼ੰਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਡੋਪਿੰਗ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੇਹਾਨ ਮਧੂਸ਼ੰਕਾ? ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਡੇ ਨਾਈਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਖੇਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵੀਟ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਲੈਬਾਨਨ ਨੂੰ। ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ ਲੈਬਾਨਨ ਨੂੰ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮਾਲਦੀਵਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਤੂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਤੂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਲਦੀਵਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 INS ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਲਾਸ਼ਯ ਔਰ ਮਗਰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਐਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रनस डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? इस दिन ऑब्जर्व किया गया 25 मई ਨੂੰ। 25 मई ਨੂੰ इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रनस डे ऑब्जर्व किया गया। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रनस डे ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी इंपोर्टेंट दिन डिस्कस करते हैं। सब तो पहले डिस्कस करते हैं 21 मई के बारे। 21 मई ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਕਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 21 ਮਈ ਨੂੰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ ਡੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 21 ਮਈ ਨੂੰ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀ ਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 21 ਮਈ ਨੂੰ। ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਈ 21 ਮਈ ਨੂੰ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਲਚਰਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। 21 ਮਈ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ। 23 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਲਡ ਟਰਟਲ ਡੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਟਰਟਲ ਡੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ। 20 ਮਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੂ ਇਜ਼ ਓਨਰਡ ਵਿਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਟਰੀ ਜੈਂਡਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਟਰੀ ਜੈਂਡਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ 2019
यूनाइटेड नेशंस द्वारा बेसिकली UN की गल करते हैं, यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक अवार्ड दिता गया मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। 2 पर्सन दिता गया, अपने लिए इंपोर्टेंट बनता है इंडियन पर्सन का नाम। किहड़े इंडियन नूं दिता गया? इंडियन का नाम है सुमन गवानी। सुमन गवानी, सुमन गवानी नूं एक अवार्ड दिता गया यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड सुमन गवानी। इन्हों किस दे लिए दिता गया? इन्हों दिता गया, इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस दे विच पार्टिसिपेट किया सी साउथ सुडान दे, UN मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ साउथ सुडान, UN मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ साउथ सुडान पार्टिसिपेट किन्हों ने किया सी? मेजर सुमन गवानी। इंडियन आर्मी दे मेजर ने मेजर सुमन गवानी। ठीक है जी, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, मेजर सुमन गवानी। अच्छा, साउथ सुडान की कैपिटल और करंसी दसनी है। साउथ सुडान की कैपिटल और करंसी। अच्छा, साउथ सुडान के नाल सुडान की कैपिटल और करंसी भी दसनी है। एक कंट्री सुडान है, एक साउथ सुडान है। सुडान की कैपिटल और करंसी, साउथ सुडान की कैपिटल और करंसी। इस तो इलावा लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार, अक्षय कुमार एक्टर की गल नहीं हो रही इत्थे, लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार, लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार नूं एक अवार्ड दिता गया सी। लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार नूं एक अवार्ड दिता गया सी। किहड़ा अवार्ड दिता गया सी? लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार नूं। ठीक है, दसना लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार नूं एक ट्रॉफी दी गई सी। ट्रॉफी दी गई सी लैफ्टिनेंट अक्षय कुमार नूं रिसेंटली, वाइस एडमिरल समथिंग कुछ ट्रॉफी सीगी। विनय बदवार, विनय बदवार भी आर्मी के पर्सन ने, वाइस एडमिरल ने। इन्हों अलेक्जेंडर डेलरैम्पिक अवार्ड दिता गया सी। अलेक्जेंडर डेलरैम्पिक अवार्ड दिता गया सी। इसनूं भी यूनाइटेड UK द्वारा, ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा और यह UK द्वारा दिता गया सी। विनय बदवार, विनय बदवार नूं किहड़ा अवार्ड दिता गया? अलेक्जेंडर डेलरैम्पिक अवार्ड, अलेक्जेंडर डेलरैम्पिक अवार्ड। थलापील प्रदीप, थलापील प्रदीप नूं अवार्ड दिता गया निकई एशिया प्राइज, निकई एशिया प्राइज, निकई एशिया प्राइज थलापील प्रदीप। थंगजाम दबाली सिंह, थंगजाम दबाली सिंह नूं ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन जापान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिता गया सी थंगजाम दबाली सिंह नूं। नेक्स्ट है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज अचीव्ड अ माइलस्टोन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 440 मीटर्स चार धाम टनल। इंपोर्टेंट न्यूज़ है भी, चार धाम टनल की गल करते हैं। एक इंपोर्टेंट टनल बनाई गई जिस नाल चार धाम्स नूं कनैक्ट किया जा सके BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। किन्ने मीटर की? 440 मीटर की। इंपोर्टेंट है भी याद रखनी है, 440 मीटर की। चंबा टाउन ऑन द ऋषिकेश धरासू रोड नेशनल हाईवे, ऋषिकेश धरासू रोड नेशनल हाईवे किहड़ी स्टेट दे विच इसनूं बनाया गया? इसनूं बनाया गया, वैसे काफ़ी ईजी क्वेश्चन है क्योंकि इत्थे ऋषिकेश पा दिता मैंने उत्तराखंड, उत्तराखंड दे विच। या फिर किसी को पता होगा चंबा टाउन कित्थे है, तो उत्तराखंड दे विच है। ठीक है जी, तो इसका आंसर की है उत्तराखंड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाई गई है, 440 मीटर की है, चार धाम टनल नाम रख इंपोर्टेंट है, और कित्थे बनाई गई है? ऋषिकेश धरासू रोड के उत्ते उत्तराखंड दे विच। ठीक है जी, इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने याद रखने हैं। अच्छा, BRO की गल करते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अपने इसका फाउंडेशन डे भी मनाया सी, फाउंडेशन डे भी मनाया सी। कमेंट बॉक्स के विच आंसर दसना है कदों मनाया सी, 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई। ऑप्शन दिते ने 5 मई, 6 मई, 7 मई या 8 मई। 1960 के विच इसनूं बनाया गया सी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नूं, और इसके हैड ने हरपाल सिंह। हैड कौन ने? हरपाल सिंह। उत्तराखंड की अगर आप गल करिए, गारसेन, रिसेंटली गारसेन नूं उत्तराखंड की समर कैपिटल अनाउंस किया गया, समर कैपिटल अनाउंस किया गया। झारखंड द्वारा रिसेंटली 3 स्कीम्स अनाउंस की गई सी, 3 स्कीम्स अनाउंस की गई सी। बिरसा हरित ग्राम योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और वीर शाहिद पोटो हो खेल विकास स्कीम, वीर शाहिद पोटो हो खेल विकास स्कीम। ठीक है जी, इंपोर्टेंट फैक्ट्स ने
याद रखने ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी गेट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेक्शियस डिसीज ब्लॉक फैसिलिटी। इतने ब्लॉक BLOC के आएगा ब्लॉक फैसिलिटी। एक यूटी दे विच अपने तरीके का पहला इन्फेक्शियस डिसीज ब्लॉक फैसिलिटी नूं इनोग्रेट किया गया। अपने तरीके का पहला इन्फेक्शियस डिसीज ब्लॉक फैसिलिटी इंस्टॉल की गई। कित्थे की गई? जम्मू कश्मीर दे विच। फर्स्ट ऑप्शन जम्मू एंड कश्मीर दे विच इसनूं किया गया। ठीक है जी। इस दे बारे अगर आप थोड़ा डिटेल दे विच चलते हैं, इसनूं कित्थे किया गया और किस द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर दे विच इसनूं किया गया श्रीनगर दे विच। श्रीनगर दे विच कित्थे किया गया? एक प्लेस है इंपोर्टेंट है, शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्कीम्स कहा जाता है। इंपोर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म के इसनूं स्कीम्स भी कहा जाता है। शेरे कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्कीम्स श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर दे विच बनाई गई। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन्फेशियस डिसीज ब्लॉक फैसिलिटी। इनोग्रेट किस द्वारा किया गया? इनोग्रेट किया गया बसीर अहमद खान द्वारा। बसीर अहमद खान। बसीर अहमद खान कौन ने? बसीर अहमद खान लैफ्टिनेंट गवर्नर ने ਜਿਹੜੇ जम्मू एंड कश्मीर ਦੇ। कौन ने? GC मुर्मू। GC मुर्मू लैफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू एंड कश्मीर ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ एडवाइजर ने। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो फरवरी या मार्च के ਆਪਾਂ न्यूज़ डिस्कस की सी। एडवाइजर अपॉइंट किए गए सी GC मुर्मू। लैफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर कौन अपॉइंट किए गए सी? बसीर अहमद खान। इन्हों द्वारा इनोग्रेट किया गया। इस करके इन्हों का नाम भी इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना है। किस द्वारा इनोग्रेट किया गया? बसीर अहमद खान द्वारा। ठीक है जी, इंपोर्टेंट न्यूज़ है, याद रखनी है। अच्छा, लद्दाख के विच इवेंट हैल्ड किया जाएगा। लद्दाख के लेह दे विच किहड़ा इवेंट हैल्ड किया जाएगा? 23 ऑफ जून नूं इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे का इवेंट लद्दाख के लेह दे विच हैल्ड किया जाएगा। दिल्ली ने 5T प्रोग्राम ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया। 5T प्रोग्राम भी लॉन्च किया। इस तो इलावा एवरी होम अ स्कूल एवरी पेरेंट अ टीचर। एवरी होम अ स्कूल एवरी पेरेंट अ टीचर इनीशिएटिव भी दिल्ली गौरमेंट का सीगा। चंडीगढ़ के विच CHD कोविड एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी। CHD कोविड एप्लीकेशन लॉन्च की गई सी गवर्नर द्वारा। चंडीगढ़ के गवर्नर कौन ने? VP सिंह बदनौर। VP सिंह बदनौर। लक्षद्वीप ने एप्लीकेशन नोट की थी नादी। नादी एप्लीकेशन लक्षद्वीप। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इम्पोज्ड 50% स्पेशल कोविड फी ऑन रिटेल प्राइस ऑफ लिकर इन केस ऑफ होम डिलीवरी। एक स्टेट ने अनाउंस कराया अगर लिकर दी या कह सकते शराब की होम डिलीवरी की जाएगी तो जो उसका रिटेल प्राइस है उसका 50% एक्सट्रा देना पड़ेगा एज कोविड फी। किहड़ी स्टेट द्वारा यह अनाउंस किया गया? इसनूं किहड़ी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया? इसनूं अनाउंस किया गया उड़ीसा द्वारा। उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। अच्छा, नवीन पटनायक नूं हीरो टू एनीमल अवार्ड भी दिता गया सी। हीरो टू एनीमल अवार्ड दिता गया सी पैटा इंडिया द्वारा। यह याद रखना है। नवीन पटनायक द्वारा एक बुक रिलीज की गई सी एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। एडवेंचर्स ऑफ डेयर डेविल डेमोक्रेट। इन्हां दे फादर बीजू पटनायक की लाइफ स्टोरी उत्ते। इन्हां दे फादर बीजू पटनायक की लाइफ स्टोरी उत्ते। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वो बीजू पटनायक उड़ीसा के। नवीन पटनायक भी लगातार 5 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उड़ीसा के। इंपोर्टेंट नेम है, याद रखना। इस तो इलावा मध्य प्रदेश द्वारा भी रिसेंटली स्कीम लॉन्च की गई। मध्य प्रदेश द्वारा अनाउंस की गई श्रम सिद्धि अभियान। श्रम सिद्धि अभियान। श्रम सिद्धि अभियान माइग्रेंट वर्कर्स नूं जॉब प्रोवाइड करवाउण दे लई श्रम सिद्धि अभियान। श्रम सिद्धि अभियान लॉन्च किया गया सी मध्य प्रदेश द्वारा। अच्छा, राजस्थान। राजस्थान की गल करिए, राजस्थान द्वारा रिसेंटली एक स्पैशल बस सर्विस लॉन्च की गई। स्पैशल बस सर्विस लॉन्च की गई मोक्ष कलश नाम की स्पैशल बस सर्विस लॉन्च की गई राजस्थान द्वारा। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर। अच्छा, राजस्थान की नहीं, ये 5 स्टेट्स के
चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स के दसना। नेक्स्ट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ई कॉन्कलेव। MSME ई कॉन्कलेव हैल्ड किया गया। MSME ई कॉन्कलेव हैल्ड किया गया जिसकी थीम रही बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ई कॉन्कलेव विद थीम बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। इसनू चेयर किस द्वारा किया गया, किहड़े मिनिस्टर द्वारा इसनू चेयर किया गया, यानी कि इस कॉन्कलेव नू हैड किसने किया। इस कॉन्कलेव नू हैड किया, काफ़ी इंपोर्टेंट और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहेगा। इस कॉन्कलेव नू हैड किया राजनाथ सिंह ने। इंपोर्टेंट है कि इस कॉन्कलेव नू MSME मिनिस्टर द्वारा नहीं चेयर किया गया, यानी कि इस कॉन्कलेव के प्रेजिडेंट MSME मिनिस्टर नहीं सी। इस कॉन्कलेव नू चेयर किया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, क्योंकि इसकी थीम डिफेंस के नाल रिलेटेड है। इस करके आप याद रखांगे कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जिहड़े कि लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने, उन्होंने द्वारा इस कॉन्कलेव नू चेयर किया गया। इस तो इलावा अमित शाह होम मिनिस्टर ने, गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर ने, मिनिस्टर का नाम हमेशा याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। MSME मिनिस्टर ने, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर ने नितिन गडकरी। इस तो इलावा रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन्हां लवे और नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP ने। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर ने और राज्यसभा MP ने है कर्नाटका तो। राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो। फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है। DV सर्बानंद गौड़ा, DV सर्बानंद गौड़ा, DV सर्बानंद गौड़ा केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने, और यह बेंगलुरु कर्नाटका तो, बेंगलुरु कर्नाटका तो लोक सभा MP ने। कर्नाटका तो लोक सभा MP बेंगलुरु कर्नाटका तो DV सर्बानंद गौड़ा ने, और राज्यसभा MP कर्नाटका तो ने निर्मला सीतारमन, जिन्होंने लगे फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन गिवन इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। इंपॉर्टेंट अवार्ड है भी, इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर हिज रिसर्च इन इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे विच इन्हां दी रिसर्च दे करके इन्हां नूं अवार्ड दिता गया इन्वेंटर ऑफ द ईयर। इंपोर्टेंट अवार्ड है इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसनूं दिता गया इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड? राजीव जोशी। फोर्थ ऑप्शन, राजीव जोशी नूं इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया फॉर हिज रिसर्च इन इलैक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। बेसिकली IBM दे विच ये साइंटिस्ट ने। IBM दे विच इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंप्यूटर, अगर आप गल करिए आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे विच, या कह सकते हैं कंप्यूटर के फील्ड दे विच काफ़ी वड्डी इंडस्ट्री है IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इंपोर्टेंट इंडस्ट्री है। राजीव जोशी IBM दे विच साइंटिस्ट ने। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी इंपोर्टेंट ऑप्शंस की गल करिए, सुदर्शन बाबू। सुदर्शन बाबू नूं USA द्वारा नैशनल साइंस बोर्ड का मैंबर बनाया गया सी। सुदर्शन बाबू नूं USA द्वारा नैशनल साइंस बोर्ड का मैंबर बनाया गया सी। कुछ टाइम पहले आप डिस्कस किया सी, नैशनल साइंस बोर्ड का मैंबर USA द्वारा सुदर्शन बाबू नूं बनाया गया सी। TS त्रिमूर्ति नूं विजिलेंस कमिश्नर बनाया गया सी। अगर आप चीफ विजिलेंस कमिश्नर की गल करिए संजय कोठारी ने, और उन्होंने डिप्टी उन्होंने विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए सी, नहीं उन्होंने कमिश्नर अपॉइंट किए गए सी सुरेश एन पटेल। TS त्रिमूर्ति नूं यूनाइटेड नेशनस दे विच इंडिया वालों यूनाइटेड नेशनस दे विच एंबेसडर अपॉइंट किया गया सी। सॉरी अच्छा थोड़ी मिस्टेक हो गई सी। TS त्रिमूर्ति यूनाइटेड नेशनस दे विच एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी। यूनाइटेड नेशनस दे विच एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी इंडिया वालों TS त्रिमूर्ति, और सुरेश एन पटेल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए सी चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी के अंडर। शिवदास मीना की गल करिए, आप डिस्कस किया सी हुडको के बारे। अगर किसी को याद हो हुडको के बारे, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हाउसिंग एंड अर्बन
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁਡਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਡਕੋ ਦੇ MD ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਡਕੋ ਦੇ MD ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਮੀਨਾ। ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਮੀਨਾ ਕੌਣ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? ਹੁਡਕੋ ਦੇ MD। ਹੁਡਕੋ ਦੇ MD ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਿਵਦਾਸ ਮੀਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਿੰਨਾ ਲਵੇ? ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਲਵੇ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਲਵੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲਵੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।